Joining us is PV Sindhu, fresh after winning the gold medal at the Commonwealth Games in Birmingham. Sindhu, firstly, congratulations and thank you for being here. Thank you. Thank you so much. Sindhu, the CWG gold was what was missing from your Hall of Fame. Now you finally won it in some dominant style. How is the feeling? Well, it feels really good because it was a much weighted win because, I was waiting for this for a long time and I finally got it because I've missed it a couple of years back and before that. But I think overall, it's like a sequence which I've completed. So I'm very happy about that. And Sindhu, the gold medal was expected of you and you delivered it very, very well. But is there a time when the pressure of expectation gets to you or you've gotten used to it? I think there are expectations always and there is pressure. So I think it's very important that when you go into match, you focus on yourself and do what you have to do because expectations will always be there. And if you think about that, that would add extra pressure. So I think it's just that you have to go there and give your all out and just come back. Yeah. And Sindhu, the big stage, the global stage is where you really shine, where you peak. What is it that you love so much about competing at the highest level? Well, a lot of people ask me that, but I think it's the same every time I go into a match or a tournament. Well, I don't know, but it's a good thing, I would say. Where even this Absolutely. time, I think the crowd has been really, really very good, fantastic. Because I mean, every single day they've been there supporting me. I think that gave me a lot of confidence, a lot of boost because even though I lose a point, even though I lose a couple of points and I get nervous, I think they don't let me down, and they always keep me pumping up that it's okay, come on, you can do it, something or the other, and that gives me a lot of confidence, so which is really good. And it's also a sense of normalcy. Now, fans coming back into the stadium, supporting the athletes. The 2 years have Yeah. been difficult for everyone. Yes, it has been really, really very hard for us also because we miss all of it, and it's like something different. So I'm used to both of them because last time at Tokyo we had nobody, but Yes. when you see now there's like everybody. So it's a good thing that they've come back and now it's been normal, and obviously precautions have been taken care of. But it's really good to see the fans out there again. And Sindhu, how is the ankle? Would you be fit enough to take part in the World Championships? We spoke to your father and he was very worried about the pace that you were in. Yeah, I mean, it was, there was a little bit of stress, but I think, needed a bit of rest now at the moment. So working on it. So hopefully it should get better. Let's hope for the best. Yeah. And how are you looking at the World Championships? Not an easy draw either. Yeah, well, it's not an easy one, but I think every round is equally important, and it's not going to be easy. They're not going to be easy matches. So, of course, everybody World Championships is something really big. So everybody have to give their best from day one. So yeah. Sindhu, your partnership with Coach Park is obviously bringing medals, laurels for the country. Personally, for you, what are the major changes that you've seen in your, badminton career since you started training with him? So I think there have been a lot of changes. I would say I think even if you must have seen, there've been a slow change from day one until now when I started off with him. I think which is a good sign because I'm sure everything is a learning process and everything takes time. So overall, I would say when it comes to skill wise or strategy wise, things have been changing, and also in my game, I would say like stroke wise, there's a bit of deception, and it has been changing a little more, which is a good thing because that is very important in an athlete. Because when you play with any other player, they know your game easily, they read your game easily if you play once or twice, and here we keep playing continuously in one or the other tournament. So that is why it is very important to keep changing accordingly, because they shouldn't read our game or they shouldn't understand a strategy. So accordingly we need to change, which me and Park has been discussing, whether it if it comes to skill wise or when it comes to strokes or strategy, and it's been working out, so which is a good thing. And the bond
is of course very much important between a coach and a player. So we discuss in such a way that, few points are there where he doesn't agree or I don't agree. So accordingly we come into a conclusion that okay, this needs to be done. So that is how we've been, working out together, which has been really good. And it just shows when you even won the gold medal, the fist bump and the hug, all of it sort of transcends together into what you'd been working on for so many months. Yes, of course, because we've been working together for so many months, so many years. Obviously, he came in 2020 now, so I think getting that win obviously is like a relief. It's like, I mean, I have played everything, I've given my 100%, and he's also happy that we have finally won. So as a coach, I'm sure he wants to see me win so many more. So this is one of them, of course. I think after the match, I went to him, I thanked him, and I hugged him, and he was very, very happy about it. And Sindhu, we spoke about fans being in the stadium, but would you say that social media also is as much relevant these days in terms of the support, in terms of the motivation? We see the PM congratulating personally each and every athlete, each and every achievement. So there is a constant source of motivation from social media as well. Yes, it's been really, really good. It's been flooded, I would say, because everybody is following Commonwealth Games. Everybody is following the sport. So, which is really good that sport in our country has been growing up. And I mean, especially PM sir, of course, he has congratulated me. I mean, a lot of politicians, a lot of superstars, a lot of athletes have congratulated me, which is really good. And I think it is very important because it gives us a kind of motivation that yes, a lot of people are looking back out there when we are playing our matches, and which is really good. And that gives us a kind of joy and happiness that yes, we can do much more better, and we can go to much more to the higher heights, because I think these kind of things are very much needed, because this gives you definitely a lot of joy. I mean, for me, because social media always, when I win something, I mean, there have been messages which have been flooded. Sometimes I miss out few, I feel sad about it, but I think I together give a message that thank you so much to all the people out there. Even now, even though I've missed out few persons, but I think I would definitely thank them a lot, because I would just say that thank you so much for your support and love, because you have shown, in the social media, and you've been wishing me out there. And Sindhu, the Commonwealth Games are happening in the year that we're celebrating 75 years of independence. What would your message be to the people of India, and also what it feels for you as an athlete when you see the national anthem being played and the flag going high? Well, definitely. Firstly, of course, happy Independence Day. It's not far away, it's just coming. But overall, I think, it's been such a great honor representing my country. And, when I was on the podium, I had tears in my eyes, when the national anthem was being played and the flag was going high. I think that honor, I literally had goosebumps, because, your national anthem being played in different country. And, because of you winning a medal for the country and getting that medal for the country, and, you being on the podium. So it means a lot, of course. It's a pride. So I was like over the moon. I had no words, because it's not played all the time. But, since you're playing the Commonwealth Games and you're there and you've achieved something, and, you've done something for your country, it's a proud moment for me being an Indian. And last question, Sindhu, the overall performance of the contingent, there was a lot of talk about how many medals will we get. We don't have shooting, but 61 medals, 22 goals. You would say it's a good performance from the Indian team. Yeah, I think it's been really, really fantastic this time. I mean, everybody out there have really worked hard and got so many medals for the country when it comes to starting with the weightlifting, obviously, and boxing, and you see table tennis, we've got some good medals, badminton, and also when you talk about track and field, I mean, that's unbelievable. I think they've done really, really well when it comes to long jump. I mean, people whom we have thought that okay, they're going to do well, and they've got some amazing medals for us. So I think it's a really good thing that we've been growing higher in this sport, and we've been getting some good medals, and I'm sure even further we will get a lot of medals. Sindhu, thank you so much for your time and speaking to us on Times Network. Thank you.
we are joined by a champion who has not only put the nation in the world's field of weightlifting, but also is a symbol of women power. We are joined by none other than Mirabai Chanu herself in her humble residence here in Manipur. We are going to speak a lot about her mindset after winning the gold in the recently held Commonwealth Games, and also about her journey to become a successful weightlifter in the world arena. So पहले हम आपसे ये जानेंगे कि आपने फिलहाल एक अभी हाल ही में अपने गोल लाया है देश के लिए. सो पहले आपको जानेंगे कि आपका अभी क्या माइंडसेट चल रहा है, कैसा माहौल है अभी मतलब. मुझे बहुत खुशी हुई है जब गोल्ड मेडल जीत के आए थे, तो उसके बाद ही हम इंजॉय भी किया उधर कॉमनवेल्थ गेम्स के वेन्यू में ही, कंपटीशन की जगह पे हम इंजॉय किए, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस लोग आए थे, इसमें मणिपुरी फैमिली भी होते थे, तो हम सब मिलके हम इंजॉय किया. और इंडिया आने के बाद भी मैं तुरंत ही घर आ गई, तो और भी माहौल अच्छा हो गई. बहुत हैप्पी है सब लोग. मैं फैमिली के साथ इंजॉय किया और फ्रेंड के साथ इंजॉय किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आप अभी गोल्ड आपने दोबारा जीता कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले, एक बार सिल्वर जीता, गोल्ड पहले जीता था, फिर सिल्वर भी जीता टोक्यो में. तो अभी नेक्स्ट क्या है मीराबाई चानू के लिए? मैं टोक्यो के बाद ये बड़ा कंपटीशन थी कॉमनवेल्थ गेम्स, तो इसमें भी मैंने गोल्ड लिया और रिकॉर्ड भी किया. फिर अभी मेरा टारगेट है वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ये कोलंबिया में होने वाला है, कि फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाइंग है इसमें, तो मैं इसी के लिए पूरा टारगेट कर रही हूँ अभी के लिए. फिर इसके बाद एशियन गेम्स होने वाले हैं, तो मैं एशियन गेम्स में आज तक वेट लिफ्टिंग का मेडल नहीं है, तो मैं इसी के लिए पूरा तैयारी कर रही हूँ. आपका सबसे बड़ा ये बात है कि आपको बहुत सपोर्ट मिला था, जब आपने अपने स्टोरी में बताया है कि बचपन से आपको बहुत सपोर्ट मिला है, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, और इवन लोकल जो आप, क्योंकि आप थोड़ा एक रिमोट एरिया में रहती हैं, यहाँ से आपको बहुत सपोर्ट मिला था. तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे आपने जब प्रैक्टिस में यहाँ से आप जाते थे. आप एक और स्टोरी भी है कि आप ट्रक्स वालों से लिफ्ट भी लेती थी. तो ओवरऑल फैमिली, फ्रेंड्स और लोकल्स का जैसा सपोर्ट रहा है, जरा हमारे दर्शकों को प्लीज बताइए. जब मैंने शुरू किया था वेट लिफ्टिंग, तो उसी टाइम में मेरा फैमिली का प्रॉब्लम तो थोड़ा होते हैं कि वेट लिफ्टिंग ऐसा इवेंट है कि डाइट के ऊपर वो डिपेंड करते हैं वो सब, पर फिर भी मेरा फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट किया कि जो मैं जाना चाहते करना चाहती, तो उसी को आप जब तक आपका पूरा नहीं मिली, आपका जो सपना है उसको पूरा सफल नहीं मिले, तब तक हम आपकी ही सपोर्ट करते रहेंगे. ऐसा ही मतलब मम्मी मुझे बार बार बोलते रहते, तो इसी से मुझे बहुत सपोर्ट मिली. और इधर से खुमर लंपाक मतलब मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, उसी तक 24 किलोमीटर होती है, तो इसी के लिए जाने का सुबह कोई वो नहीं थी, बस नहीं थी, कोई टैक्सी नहीं होती थी. तो उसी टाइम में इधर हमारे ये रोड पे एक ट्रक आती थी हर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे ऐसे 5 बजे इस बीच में आती थी. तो मैं इसकी लिफ्ट लेके मेरा ट्रेनिंग सेंटर है उधर तक मैं जाते थे कि ट्रेनिंग अच्छे से मुझे टाइम से पहुंच पाए, और ट्रेनिंग रेगुलर में अटेंड करने के लिए. तो मैं उनसे ही हेल्प मांगी थी, तो वो लोग भी बहुत ही सपोर्ट दिया. हर टाइम मुझे इधर से पिकअप करके उधर ही ड्रॉप करती थी. तो उनकी वजह से मतलब पूरा मेरा जो विलेज है, तो वो लोग बहुत सपोर्ट देते थे मुझे. हर मैं कंपटीशन में जीत के आते तो साथ में मुझे वेलकम सेलिब्रेट करते हैं, वेलकम करने आते हैं. तो आपके विक्ट्री में वो भी अपना शामिल देते थे? जी हाँ जी. और ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, बस जस्ट थोड़ा और क्वेश्चन पूछेंगे. ये आपने अभी ये आपका घर अभी आपने अच्छा बनाया है, लेकिन आपके मम्मी बोल रहे थे कि पहले आप लोगों का छोटा घर था, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसा रहा? मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते थे आपके थोड़े, तो उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए. मैं पहले से ही मुझे ऐसा सोचा था कि मैं अच्छा बड़ा प्लेयर होने के बाद जब मेरा पास जॉब हो, तो उसी टाइम में मैं एक बार मेरा घर को अच्छे से रखे, मम्मी लोग को अच्छे से रखने के लिए मैं यही सोचते रहती थी. तो मैं अभी थोड़ा सा मेरा इनकम आया, मेरा जॉब मिला, तो उसमें से मुझे जो मैंने सपना थी अच्छा वाला घर में रहने के लिए. पहले के बारे में थोड़ा बताइए, जब ये बड़ा घर नहीं था तब छोटा घर था, तो कैसा हालत था? बहुत हालत खराब थी. हम भाई बहन 6 लोग हैं, तो एक छोटे से घर में रहने का बहुत ही प्रॉब्लम होती थी कि बारिश होने के टाइम में पानी भर जाते थे, ऐसा हुआ था. अभी भी है मेरा छोटा सा घर, उसमें हम साथ में रहते थे. तो उसी टाइम
हाँ, प्रॉब्लम होती थी बहुत सारे, पर वही देख के मुझे भी एक प्रॉमिस जैसा मैंने किया था कि मुझे एक अच्छा वाला घर जरूर बनाना है, मैं बड़ा बनना है, इसके बाद मुझे बनाना है ऐसा। तो वो हिम्मत मुझे ज़्यादा दिया है, मेरा फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, तो इसकी वजह से। लास्ट क्वेश्चन जानेंगे आपका मैसेज टू द यंग, मतलब लोग जो आपको देख रहे हैं, स्पोर्ट्समैन हो या ना हो तब भी आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए कि आगे? मैं जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हो या स्टूडेंट हो या कोई भी मतलब यंग अभी आने वाले जनरेशन में आ रहे हैं स्पोर्ट्स में भी, तो मुझे ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गलत काम ना करें, कि खुद को मतलब पहले किया हो तो भी अभी उनके पास बहुत ही टाइम है, तो इसलिए चेंज करने के लिए कोशिश करें और अपना आप हेल्दी रखने के लिए। तो अभी जो भी स्पोर्ट्स में आ रही है, तो मुझे सिर्फ ये बोलना चाहिए मेहनत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक बड़ा प्लेयर्स और इंडिया के लिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस, और जो आपकी गुरु है उनकी बात मानना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो सेक्रीफाइस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेहनत बहुत ही ज़रूरी है, मेहनत करेगी तो आपकी जो सपना है उसको सब मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए और हम सब मिलके इंडिया के नाम को हर टाइम ऊपर ही रखते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बचपन में मीराबाई चानू को जब ट्रेनिंग के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था, कैसे खाना वाना डाइट, कैसे आपने ओवरऑल उनके लिए प्रिपरेशन किया और क्या क्या आपने भी सेक्रीफाइसेस किए उसको ये अचीव करने के लिए? अना सानबा हौगलक्पा मतमदने नंगना करी करी थेंगनागिबा चाना थंगनाबदा कमाइना पिजागी अदुगा करी करी मतेंग पांगबिगी अदुगा कोइकी कथोकपदो मयाम अमा कथोखिबदो अदुमदो करी करी लैगिगे? माना सानबा हौरकपदा यामना वाई, मागी पिजनबा पिथक्नबा लैतबनिना लाइरबा मतमददि यामना वाबनिना माबु कैसु पिजबसु ngamgide पिजे पिथक्प ngamde मागी डाइट नुंग पिजबसे अखोई कया ngamgide अदुगा हजिकता माना खरा खरा ngammakpa कनो लौरकपा बोलमदन लौरकपा मतमजिदा अखोई मा मथंदना अदुम मथंदा डाइट नुंग चाबा खोपदे मथंदना अदुम होनाजरे मतमददि मामा हाना मतमददि अखोई यामना वाना अदुम हौरे माबु पिजबा ngamgide। जब मैं शुरू में तब थे तो उसी टाइम में कुछ खिला नहीं पाते थे, पर हमको हमारी जो फैमिली का सपना जो है पूरा करने के लिए हम बार बार इसको बोलते रहते हैं कि मैं तो कुछ खिला नहीं सकती, पर आप अच्छे से गेम करो, आप बड़े प्लेयर्स बनो, तो हम आपके लिए हर टाइम मैं कदम कदम में हमको आपके साथ ही रखूँगी। तो बस आप यही है हमारी आपसे बोलने का, या आपको आपके लिए कर सकती हूँ, बस आप मेहनत करो। तो इंडिया के लिए, भारत के लिए, ये मणिपुर के लिए पूरा आप नाम लेके आओ, बस यही हम आपके लिए दुआ कर सकती हूँ। बाकी आपके ऊपर सब कुछ है, तो जो भी अच्छे टाइम में बुरे टाइम में हम आपके साथ ही रहेंगे। Hello and welcome to this special broadcast. Today with me is the Sen family that has not given India one, not two, but multiple champions. And of course the recent laurels that Lakshya Sen has brought to India by of course ensuring that the Indian tricolor flies at the highest level will of course make every Indian proud. But today of course we meet the entire family. Firstly, thank you Lakshya, Chirag and the entire family for joining us and speaking to us about these achievements. But before I come to all of you, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, well, it must have been an ecstatic feeling, winning that gold, in the Commonwealth Games this time. Yeah, it's always been my dream to win a tournament like CWG Games, and बचपन से ही मतलब we have seen in the TV how people play, तो काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए वहाँ पे पहली बार जाना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, और फिर जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा I got a gold medal, तो it feels like a dream. Well, मैंने तो आपका पूरा मैच देखा था. It was a tricky match because first set में I think he was quite aggressive, and for the way you came back, you made it seem like a cakewalk. क्या हुआ एक सेट के बाद? आपका mindset change हुआ कि opponent weak हो गया? क्या हो गया उसके बाद? I would say कि first set was very crucial for both of us, but at the same time
मुझे ऐसा नहीं लगा कि इफ़ आई लूज द फर्स्ट गेम मैं कम बैक नहीं कर सकता, या 3 गेम का लंबा मैच था एंड थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मैं लास्ट के जो पॉइंट्स थे उससे, बट जो आगे आने वाले पॉइंट्स थे उसमें मुझे यही था कि किसी का भी मैच था फर्स्ट सेट, और अगर मैं इतना क्लोज आ सकता हूँ तो सेकंड और थर्ड में जीत भी सकता हूँ। एंड जब जो सेकंड गेम में जब स्कोर लाइन में थोड़ा लीड में आ गया एंड देन उसने वो मैच छोड़ दिया बिकॉज ही वाज लाइक नॉट पुशिंग दैट हार्ड टू प्ले द थर्ड गेम, और वो फ्रेश उसमें खेलता। तो फॉर मी वो टाइम पे यही इंपॉर्टेंट था कि आई गेट अ गुड स्टार्ट इन द थर्ड सेट एंड आई मैनेज टू डू दैट। Tell us a little about the journey together as a brother with him. You are the elder one. He must have, of course, looked up to you. Now looking at your brother as well achieve great heights. How does it overall? How is your career, his career? How is all of this coming together for you at this point? I think like we moved to Bangalore like when we were kids. Like I was like 13 and he was like 10. So that time we moved to Bangalore. So from that time we are together, we stay together. So it's like a long journey since then. And मतलब तब से साथ में रहते हैं, साथ में ही खेलते हैं। तो हम मतलब तब पापा लोग इधर नहीं थे, फिर पापा लोग 2018 में आ गए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उसके बाद से। और उसके पहले भी मतलब हम दोनों को एक दूसरे का लुक आफ्टर करना पड़ता था। तो आई थिंक हाँ वो एक बहुत लंबा जर्नी है। और तब हम लोग जूनियर होते थे और अकेडमी में काफ़ी सीनियर्स थे हमारे, तो हम लोग उनको देख के सोचते थे कि विल ऑल्सो प्ले समडे फॉर इंडिया। मतलब वो काफ़ी सीनियर्स थे, अजय भी है, ये लोग कंटिन्यूसली इंटरनेशनल सर्किट खेलते थे। तो हम उन लोग को देख देख के हम भी सोचते थे कि हमें भी खेलना है, और आज ये कॉमनवेल्थ गेम जीता है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। Absolutely. But what surprises me is that you said 10 and 13 years old you guys were when you moved in together. When probably me and my brother, we have the same difference in age. When we were that age, all that we did was fight with each other. So आप लोगों के बीच लड़ाई सब नहीं होती थी तब साथ में जब ट्रेनिंग कोचिंग जाते थे आप? जी होती थी, बट देन विद एज इट केप्ट गेटिंग लोअर एंड लोअर। मतलब पहले बचपन में तो काफ़ी लड़ाई करते थे एज नॉर्मल ब्रदर्स, बट जब थोड़ा बड़े होते गए, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होते गए, तो वो चीज़ें कम हो गई। इन्होंने मुझे कहा था कि क्लास 5-6 तक तुम इनको खेलने दो। अगर ये 6 तक में मुझे पता चल जाएगा कि अगर इनको गेम में ही आगे जाना है तो विल डिसाइड दैट। तो मुझे ये लगता था कि हमारे उत्तराखंड में नैनीताल एक जगह है, वहाँ बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, स्कूलिंग बहुत अच्छी है वहाँ की। वहाँ जैसे सेंट जोसेफ है और सेंट स्कूल है, तो हम लोग को भी लगता था कि बच्चों को वहाँ स्टडी करना चाहिए। तो मैं इनको बार बार ये कहती थी कि इनको वहाँ सेंट जोसेफ भेजना है ऐसे। तो कहते थे बस 5th तक देख लेते हैं, अगर नहीं किया इन्होंने वहाँ फिर तुम इनको पढ़ाई में लगा देना। देन इनका तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, स्टेट लेवल था, नेशनल लेवल, वो सभी आ गया। इवन 11 जब का तब ये था तब इंटरनेशनल भी आ गया। फिर वो उधर ही को चला गया। मतलब फिर भी हमने उसको नहीं छोड़ा स्टडी को। तो मुझे ये लगता था कि ग्रेजुएट तो इनको करना ही है किसी भी तरह, चाहे उसमें टाइम लगेगा चाहे कैसे भी। तो ये लेकिन ये था कि मतलब एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि अगर जो भी काम करना है वो ऑल आउट जाके करना। तो अच्छा क्योंकि 5th-6th तक इतना कोई मतलब जोर नहीं है कि आपके इतने परसेंटेज आने चाहिए। As brothers, you have trained together. You have had gone coaching together. But do you want to represent the country together? Is that a dream that you guys have? No, we have already represented the country in the junior times as a teammates. So I think that tick mark has already been done. So going into now into the future as well, is that a plan? Yes, definitely. Some tournaments we travel together, whether it's the international tournament or the national championship. But yeah, we have always traveled together. Even sometimes when we are training outside, so we train together there as well. So what do you guys like, Chirag? आपको singles खेलना पसंद आता है कि doubles? And if you choose a partner, do you think Lakshya is a good partner? Because sometimes you have that combination that really works for you with the partner. आप बताइए इसके बारे में. I think I have to choose singles. Okay. But in doubles, yes, we have played doubles together, like in practice. But it doesn't really work out. You guys argument में लग जाते हो दोनों? It's very difficult to place two events because it's a physically demanding, completely different game, and जो tactical चीजें हैं for singles and doubles is I think completely different. So
think it's very rare that he is a good doubles player, I would say. Like he can play singles and doubles both. So I think that you see very rare in people. But yeah, for me, I would say I can still play doubles, but I'm not very good at doubles. So I think so he can choose any better partner than me. A lot happened at that point in time. I think NG was giving his all in the first set, and it looks like somewhere he probably maxed out towards the end. Do you feel that you pushed him to give his best because his first set he had to be better than what he could to really beat you? Did that really happen? I mean, what was the thought process really? If you could take us through that. I think in any game when you go in, you don't think about the third set straight away. So you always try to take the first game, and then because especially in finals you don't want to start with losing a game, and because the pressure is as such that it builds a lot after a certain time, and then if you get a good start you always want to win the first game. But we both pushed each other in the first game, I think too hard, where it was I think close to 32 minutes for the first set. So I think it was very draining for both of us. But I think I managed the second and third game well, and once I had the lead, I was just trying to keep the lead always even in the second game and the third game, that if I have the lead, I'm not giving him any easy points, or even if he takes like 1-2 points, I straight away go take a break, or maybe try to change my tactics, or never give a easy point just straight away. Make him work, make him let him win a point, then it's okay. Otherwise, just don't give any easy points at that time. I think a lot happened in that second set. Like you said, probably he was trying to conserve energy for the third set. He didn't give it his all, but then probably you at that point in time had the edge because you had a little more energy going into the third set. I think that's where you clinched it, and of course probably mentally as well. We thought, as I think all of us when we were seeing it, you were probably stronger and he was diminishing towards the third set. Is that what happened? Yeah, I think once you see that your opponent is going down a bit after a good rally, when as like after a maybe 30 or 40 shots rally, he wants to take a break. Even you are tired at that time, but then once you win those points, you always get motivated to play again. But I think I could sense that in the third set that okay, he's a little bit tired, so I was rushing into the next point as well. And I think I managed it pretty well in the third. Tell us that moment, firstly you threw your racket. I think that was just sheer burst of energy, and then you took off, I think, your wristband. I'm sure a lot of people waiting, but taking off your shirt, was that something that spontaneous, or was it planned? So there were people sitting in this side, and then this side. So I think the fans was too amazing in the crowd that. But the first reaction was very reactive, and I didn't know how to celebrate at that point, because before the match or even while the match, I didn't think of any celebration as such. But जब वो हुआ, then I was like, I have to say thank you to the fans, and at least I can give them my t-shirt or the racket or wristband. So I threw a racket this side and wristband this side, and then the t-shirt this side. That was a superb moment. Well, thank you, Laksh, and thank you to the entire family for speaking to us. And of course, it was wonderful catching up with the champions, and of course hearing about this win and about how it feels to make the entire country proud, and to have the national anthem play when you're standing on the podium, and to have the tricolour fly high. It's of course an ecstatic feeling for them, and of course for the entire country. Joining us is Pinky, who won India's historic gold medal in lawn bowls. Pinky, thank you for speaking to us firstly. अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, लॉन बॉल किसी ने शायद मेडल एक्सपेक्ट नहीं किया था, गोल्ड मेडल आया है, ज़िंदगी बदली है उसके बाद? ज़िंदगी बदली तो है, मतलब इतना अच्छा वार्म वेलकम कभी नहीं हुआ था एयरपोर्ट पे, जो इस बार ही मिला है मुझे। कल मेरी फैमिली भी आई, हमारी BFI आई, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, लोग जानने लगे हैं इस गेम को। अब सब मुझसे पूछे कि नाम रोशन कर दे। कल जैसे मैं घर पे आई, इतना सेलिब्रेशन, मतलब एक मेडल की वजह से इतनी चीज़ें चेंज हुई है कि कोई पहचाने। हम फ्लाइट में भी थे, इवन फ्लाइट में भी लोग हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, सब कुछ।
तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें मुझे। और स्ट्रगल कितनी रही है आप लोगों के लिए? आप हो गए, लवली हो गई, रूपा, नयन, मुनी, कितना स्ट्रगल रहा है इस गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब आप बिना कोच के भी ट्रेनिंग कर रहे थे। एक्चुअली बिना कोच के 2010 में जब एक कॉमनवेल्थ हुआ था, इससे पहले एक कैंप लगा था जिसमें हमें रिचर्ड गेल ने कोचिंग दी थी। उसके बाद मिस्टर पाठक आ रहे थे, हमारे साथ गए थे। और इस बार ये नहीं है कि बिना कोच के गए थे, कोच इन द सेंस कि हमारे पास एनटीओस थे, आईटीओस थे, जो रोज़ हमें ऑब्जर्वेशन करते थे। हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल हमें मिला हुआ था कि आपको ये करना है, ये चीज़ें इस समय करनी है, तो ये हमें था। लेकिन ये था कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी था क्योंकि हम खेल चुके हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप कह रहे कि लवली, नयन, रूपा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट टाइम खेला था, तो जब वो फर्स्ट टाइम खेला तो एक कोऑर्डिनेशन होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना, ये ज़रूरत की बात है क्योंकि ये गेम में, टीम इवेंट में आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छी बात थी कि हम यहीं पे ट्रेनिंग करते थे। तो जब हम रूम में रहते थे, खाना खाने जाते हैं, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तो इकट्ठा ही होता था, तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनी। और रूपा, मैं तो लास्ट टाइम 2010 में भी खेला है, 14, 18, और इस बार हम दोनों ने टारगेट ले रखा था कि किसी भी तरह डू एंड डाई रूपा कि इस बार लेना है तो मीन्स लेना है। फिर उसमें हमारा पूरा साथ दिया, लवली ने भी, नयन ने भी, एक टीम के साथ खेले। स्ट्रगल ये था कि लास्ट 11 साल से इसका वेट होता था क्योंकि हर बार हम कॉमनवेल्थ में जा रहे थे, कॉमनवेल्थ स्किप हो रहा था हमसे कि भैया कैसे मेडल स्किप हो रहा है, या क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आखिर हम उसको फिनिशिंग नहीं दे पा रहे थे। आप एक स्कूल टीचर भी हैं, तो स्कूल में किस तरीके से डिफरेंस आया है इस गोल्ड मेडल के बाद? और इट्स अ ह्यूज डिफरेंट। मैं मतलब कल मुझे वहाँ से वेलकम के बाद डीपीएस आरकेपुरम में गई, मतलब आपको ही पता है डीपीएस आरकेपुरम चीज़ क्या है, लेकिन कल प्रिंसिपल मैम गेट पे आई हैं मुझे रिसीव करने, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि वो मुझे गेट पे आई हैं और वहाँ पर बच्चे मेरा वेट कर रहे, जबकि उनकी छुट्टी हो चुकी थी, तभी ऑल आर वेटिंग फॉर मी। वहाँ रखे हैं, ढोल बजा रहे हैं और सारी टीचर्स मेरा वेलकम कर दिए। मतलब एक मैं घूम रही रोज़ाना कि जिनसे मिल रहे हैं आप, वही टीचर है, वही मैं भी हूँ, वो भी मेरे सामने वाले बच्चे भी वही, लेकिन कल एक चेंज था। तो एक इम्पॉर्टेंस पता चलती है कि आपके इवन ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड की उसकी चमक ही अलग होती है। आखिरी सवाल मेरा पिंकी, आगे जब आप अब बढ़ेंगी तो किस तरीके के चेंजेस आप देखना चाहेंगी? मॉनेटरी आपने बोल दिया, फाइनेंशियल, लेकिन गेम के तरफ से, फैसिलिटीज़ के तरफ से किस तरीके का सपोर्ट आप और देखना चाहेंगी? सपोर्ट तो जैसे ही हम मेडल जीते हैं, मतलब मीडिया के थ्रू या हमारी फेडरेशन तो कर ही रही थी, बॉलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इवन हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बहुत हेल्प करी है। और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग प्रैक्टिस करे थे, उन्होंने हमें फुल वो दी थी फ्रीडम कि आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आने वाले टाइम पे मैं यही चाहूँगी कि इसके जितने हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम हर एक स्टेट में इसके ग्रीन हो, जिससे कि और यूथ भी आ सके और लोग भी हमें देख सके कि कितने हैं। मैं चाहती हूँ कि उसमें जितने पार्टिसिपेंट हम ही ना कहलाए कि पिंकी वहाँ पर थी, ठीक है हमने क्रिएट कर दिया हिस्ट्री। मैं चाहती हूँ यूथ आए, आगे आए और मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ। और एक गोल्ड मेडल नहीं, हर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल आए, सिल्वर आए, और अभी आने वाले टाइम पे हमारे नेशनल्स हैं, एशियन है, एशिया पैसिफिक है, और मैं इस चीज़ को मेंटेन रखूं, इससे नीचे ना जाऊं, इसके लिए और हार्ड वर्क करूं। क्योंकि अभी जाने से पहले कोविड भी हो चुके थे, मैं नहीं थी, लेकिन जो कोविड टाइम था तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ किया। मैंने अपना जिम पे वर्कआउट किया है, अपनी फिटनेस पे वर्कआउट किया है कि मैंने जिम ना जाके अपने आप घर पे मैंने उसका वर्कआउट किया है। अच्छा पिंकी, लॉन बॉल जो खेल है, लाखों लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप सबको बता पाएँ कि क्या है, कैसे खेला जाता है शॉर्ट में, तो प्लीज़ बताइए। मैं यही कहूँगी कि इसका एक डायमीटर होता है, इट्स 40 बाई 40 मीटर, जो आपको मिनिमम उसमें खेलना है 23 मीटर खेलना है। और इसमें एक जैक है जिसको आप क्वीन कह लो, तो क्वीन के पास आपको बॉल रखनी है, जिसकी मैक्सिमम बॉल लास्ट में उसके पास क्लोज होगी वो विनर होता है। क्योंकि ये बॉल स्ट्रेट नहीं है, इस बॉल में एक साइड हैवी है, एक साइड लाइट है, इसलिए ये आपका एंगल लेता है, इसलिए हल्की सी इसमें फिजिक्स यूज़ होती है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये तो ईजिली फेंक रहे हैं, ईजिली कुछ भी नहीं है, कोई भी गेम नहीं है। इवन हमारी गेम में आप मेंटली बहुत टायर्ड होते हैं क्योंकि इट्स अ 2 hours 15 minutes गेम, और अगर आपके 3 मैच एक दिन में, तो आप सोच लिए 7-8 घंटे आपको खेलना है, एंड यू आर मेंटली फिट। और मैं यही कहूँगी हर एक फैमिली को कि चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कि प्लीज़ आप बच्चों को खेलने दें इस गेम को, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ है देयर इज़ अ नो इंजरी फैक्टर। आपकी बच्चे की हेल्प ही होगी क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होता है।
आपने भी गेम देखी है कि इसमें आपको पेशेंस से सामने ही देखना है। आप जब देखते हैं, इवन मुझे हंसी की बात ये लगती है, जब हम खेलते थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लोग हमें आके देखते थे, कहते थे यार ये कुछ बोल ही नहीं रहे, मतलब ये कुछ सही है ना ये प्लेयर्स क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें कंसंट्रेशन करना होता है। तो कम, प्ले एंड डिसाइड। ऑशिंतो फील कैसा है? विश्वास हो रहा है कि आपके साथ ये सब हो रहा है? डू यू स्टिल बिलीव इट और इट्स येट टू सिंक इन? मैंने इतना सोचा नहीं था जो मेरे साथ हो रहा अभी। जैसे मैं कल इधर वापस आया वेस्ट बंगाल में, तो मुझे लेने आया मेरा भैया, मेरा कोच और मेरा गांव का सभी, फिर मेरा वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के एसोसिएशन का टीम मेंबर सभी, सेक्रेटरी, और सबसे बड़ी बात तो था जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, उन्होंने भी, मैं उनसे मिलने का कोशिश कर रहा था पहले, अभी उन्होंने मुझे लेने के लिए आया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा सर, बहुत खुशी है। ये अक्सर कहा जाता है कि सोने का जो खजाना होता है वो आप अंदर में बहुत धूल मिट्टी कोयला सब कुछ है, लेकिन सोना सोना है। आपके पीछे जो है, आप इस जगह से आपका जर्नी शुरुआत है, सोना हीरा हमारे सामने है। आपका सफर के बारे में कैसे कहेंगे? बहुत दिक्कतें हम श्योर जरूर हुई। मैं तो ऐसे ही सर ज्वाइन किया था वेट लिफ्टिंग अच्छा से, तो अच्छा सोच के फिर 2013 में पापा जब एक्सपायर हो गए, उसके बाद ही थोड़ा सा मुझे बहुत पता लगा कि क्या होता है ज़िंदगी। तो बहुत मैंने स्ट्रगल किया, बहुत मुसीबत आया, और सभी मैं मम्मी भैया सभी काम में लग गया, और धीरे धीरे मैं गेम में फोकस ज़्यादा करने लग गया क्योंकि मुझे कुछ करना था। फिर 2015 में मैंने आर्मी का फोर्स इंस्टीट्यूट बॉयज़ कंपनी में ज्वाइन किया, तो उधर से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट मुझे फील हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करते गया अपना परफॉर्मेंस। एक दिक्कत जो आपको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, अब शायद पर्सनल भी हो सकता है, एक फीलिंग जो लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो शुरुआत हो सकता है। मुश्किलें कठिनाई तो ज़रूर सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन अगर शुरुआत कोई करना चाहे तो शुरुआत हो सकता है, और आप एक जीते जाते एग्जाम्पल है सर। सर ये बोलना चाहूँगा सर, मुसीबत तो हर चीज़ में होता है, कोई सबके लाइफ में होता है। जो उसको मुसीबत को आराम से सोच के कोई मज़े से निकाल सकता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा घर पक्का घर भी नहीं, ये आपका किचन है, वो रूम से आपका शुरुआत है, उसमें आपका मेडल भी है। कभी भूल पाएंगे शुरुआत को? अभी तो आगे आप निकल ये जो सर अभी देख रहे हो घर, जो अभी जो किचन है, ये सब हाल ही में बनाया गया है। सब कुछ एडजस्टमेंट अभी किया है, कराया गया है सर। और पेंट वगैरह सब जो मेरा पूरा अभी घर का जो पहले का था वो और अलग था। इधर में ऊपर में जो इधर में टूटा हुआ है, इधर से पानी गिरता था तो रात को अगर बारिश हो जाता ना तो हम सो नहीं पाते थे, ऐसे हालत था। अच्छा जी सर। आप ये जो पूरा जीत है, आपका जो परिश्रम है, आपका जो एफर्ट है, उसको कोई डिस्काउंट नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो मेहनत करता है वो जानते हैं, लेकिन फिर भी एक परिवार का तो सपोर्ट हमेशा रहता है। आप इस जीत के श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहिए? मेरा भैया को, फैमिली से सबसे ज्यादा सपोर्ट मम्मी का भी है। मम्मी को तो पता नहीं गेम के बारे में, लेकिन मम्मी भी सपोर्ट करता था। मेरा भैया जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अच्छा, ये आपको लगता है कि देश में ये स्पोर्ट्स को लेके जो उत्साह है वो कोई जब जीत होती है तभी ज्यादा महसूस होता है? कि आपको लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए और ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक फैसिलिटी होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? इंडिया गवर्नमेंट ऐसा अभी के दिन में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में इफेक्ट करके रखा है, बस दिखाता नहीं है। जब मेडल लेता है तभी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तब पता लगता है कि स्पोर्ट्स में हम इतना इम्प्रूव किया, इतना किया, पिछले बार इतना किया, ऐसे पता लगता है। लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी सर। और ये आपके भैया बता रहे थे कि जब आपका स्ट्रगलिंग फेज था तो ज्यादा कुछ सपोर्ट आपको आया नहीं, ऐसा है कि आपको कोई किसी से सपोर्ट की उम्मीद थी जो आपको नहीं मिली? सर उम्मीद तो उस टाइम उम्मीद तो सबसे होता है जब मुसीबत होता है सर, लेकिन उस टाइम जब कुछ नहीं होता आदमी तो कौन सपोर्ट करेगा आपको? तो मैं शायद उस टाइम कुछ नहीं था, तो इसलिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। हाँ। और ये सो वेट लिफ्टिंग तो बहुत देखने में लगा बहुत आसान है, आपने ऐसे झटका में 2-3 बार उठा लिए, लेकिन आपको मालूम है कितना मेहनत उसमें लगता है, कितनी कठिनाई थी ट्रेनिंग के टाइम, और क्या क्या सैक्रिफाइस करना पड़ा। लोगों को डाइट के बारे में सिर्फ एक ही चीज मालूम है, डाइट, लेकिन डाइट क्या है उसको फॉलो करना कितना डिफिकल्टी है शायद ये मालूम नहीं है। मैं इसको एक अच्छे छोटा से बात समझा सकता हूँ।
जब मेरा कैटेगरी से पहले एक दिन पहले संकित सरगर ने जो सिल्वर मेडल लिया था, उसने बॉडी वेट देने के बाद रूम में खाना लेके आया। मैं 2 दिन से भूखा था मेरा बॉडी वेट के चक्कर में, जो उसका जो स्मेल आ रहा था सबसे बड़ी, तो समझ ही सकते हो कि कितना परेशान होता है। क्या सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करना होता है? राइस, वेज, नॉन वेज, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट आपने फॉलो किया और कितने दिन से? मैंने सारे बाहर का खाना, स्वीट सब कुछ बंद करके रखा था। अच्छा। तो मैंने इतना ही किया था, और सब कुछ मतलब अलग से सब्जी खाना पड़ता है, जो पसंद नहीं है वो भी खाना पड़ता है, जब तीखा चीज़ वो भी खाना पड़ता है, सब कुछ खाना पड़ता है सर, जो अच्छे होता है। अचिंत सर आगे क्या है? आगे क्या है? आगे बस मेरा यही ड्रीम है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है जो मुझे सपोर्ट करे, और अभी जो मेडल का जो कैश अवार्ड है वो बढ़ाए, क्योंकि उन दूसरा स्टेट्स का हिसाब से तो हमारा स्टेट में मेडल का, सिल्वर मेडल का भी जो मेरा दोस्त का स्टेट दे रहा है महाराष्ट्र से, संकित सरगर को 30 लाख मिल रहा है, वो मेडल देने के अगले दिन ही अनाउंस कर दिया। तो अभी तक पता नहीं सर अमाउंट अनाउंस किया कि नहीं स्टेट में। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से कोई अभी तक कुछ कम्युनिकेशन ऐसा कुछ नहीं है? अभी तक तो मैंने, सर ने बोला है, मनोज तिवारी सर ने बोला हम बैठ के बात करेंगे, आपको क्या मदद चाहिए हम करेंगे। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, और दीदी ने जो ट्वीट किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सपोर्ट चाहिए। क्या कहेंगे दीदी को? दीदी अगर देख रही होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब अगर आपको देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलना चाहूँगा, जब मैंने पीएम सर का मैंने ट्वीट देखा और जब मैंने दीदी का ट्वीट देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा, शायद पीएम सर से मेरा 12 को हो सकता है पॉसिबल, मिल सकता हूँ मैं, और दीदी के साथ अभी तक कुछ बात नहीं हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल है, ये जितने लोग स्पोर्ट्स में विश्वास रखते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको क्या सलाह देंगे? एक सलाह जो आप देंगे कि कठिनाई जितनी भी हो लेकिन आगे बढ़ना है और जीता जाता एग्जाम्पल आप हो, क्या सलाह देंगे आपसे? मैं यही बोलना चाहूँगा, आपका अगर आप सोचा है तो गेम में लाइव बनाने के लिए, तो उसको क्लियर करो कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो या कैसे कैसे जाना है, तब उसको आप फिर जोर लगाओ, क्योंकि सबका फैमिली प्रॉब्लम होता रहता है। तो कोई फैमिली प्रॉब्लम के वजह से गेम में भी फोकस करता रहता है और फैमिली में रहता है, तो दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता, वो फिर ना फैमिली का रहता है ना गेम का रहता है, प्रॉब्लम यही हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल तो आपने उठा लिया, झंडा इतना भारत का झंडा ऊपर गया, आपको उस टाइम कैसा लगा जब वो भारत का झंडा ऊपर जा रहा है? आपको वो देख के कैसा लगा? तो जब मैं पोडियम मेडल ले रहा था तो मुझे इतना फील ठीक लगा, और जब मेरा झंडा ऊपर जा रहा था और मेरा जब वो देश का गाना बज रहा था तो सबसे ज्यादा मुझे प्राउड फील हुआ। You have no idea how proud I'm feeling talking to you. मुझे गर्व महसूस हो रहा है। गोल्डन बॉय के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और आखिरी में अगर मेरा दर्शक है, मैं आपको छोड़ दूँ आपके बिना डोले दिखाए, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। मसल मैन विदाउट मसल दिखाए कैसे जा सकते हैं? एक बार तो मसल दिखाना बनता है, एक बार। ठीक है सर। So there you heard the young champ and the golden boy, and of course it is the golden hour of his life, having won the Commonwealth Games golden the medal, but he knows the struggle which he has seen is possibly has inspired him. Joining us is the captain of the Indian women's hockey team that won the bronze medal in the Commonwealth Games, Savita Punia. Savita, congratulations, bronze medal के लिए आपको सबसे पहले। Thank you so much. किस तरीके का स्ट्रगल रहा है? 16 साल बाद ये वुमेन्स हॉकी में मेडल आया है, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट रहा होगा जर्नी। डेफिनेटली जब जाने से पहले भी जब हम बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ की, तो सब यही था कि ओके आपका लास्ट क्या रहा, तो हमारा पूरी टीम का यही था कि ओके हमें इस टूर्नामेंट में मेडल चाहिए, क्योंकि लास्ट 12 ईयर से तो मैं भी टीम में हूँ, तब से हमने कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं लिया था, और उससे पहले सीनियर्स बताते थे कि ओके कॉमनवेल्थ की क्या वैल्यू होती है। 2006 में उनके पास मेडल था, तो हमारे एज ए टीम हमारा यही था, और ये चीज़ हमने अपने कोच को बताई, यानी कि कॉमन को, और आपको पता है कि वो हमारे साथ कितनी अटैच है, और उन्होंने यही था कि ओके मैं क्योंकि ट्रेनिंग पे उनके लिए हर ट्रेनिंग सेशन
सेम होता है, कहीं कोई भी चीज़ को वो लाइटली नहीं लेते हैं और वही प्लेयर्स के अंदर वो एटीट्यूड है कि ओके जो भी है हमारा आज की ट्रेनिंग है तो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, हमें उसमें बेस्ट करना है, बट सेम माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग करते थे कि इस बार हमें मेडल के साथ वापस आना है। हाँ ऑफकोर्स हमारा टारगेट कुछ और था कॉमनवेल्थ का, बट जो एक बीच में हर्डल आया देन उसके बाद टीम ने स्ट्रांगली कम बैक किया, तो मेरे लिए तो ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मेरी टीम के लिए कि ओके हमने एज ए टीम फाइट की और मेडल लिया। सविता, इंडिपेंडेंस डे भी है, हम 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हॉकी का इस देश से एक बहुत गहरा रिश्ता भी है, तो कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज मेडल सही समय पर आया है। डेफिनेटली मोदी सर हमेशा ही हमें हॉकी वालों को, एक पूरे स्पोर्ट्स पर्सन को, ऐसा नहीं है कि हॉकी बट हॉकी का नाम लेते हैं उनके फेस पे जो स्माइल आती है उसको देख के हमें बहुत खुशी होती है और हमें अलग सा मोटिवेशन मिलता है कि वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। तो हॉकी इंडिया में एक अलग ही सबके फेस पे अलग खुशी लेके आती है, जैसे कि लास्ट ओलंपिक्स में हम 4th आए अभी टोक्यो ओलंपिक्स में, बट आने के बाद जो हमें रिस्पेक्ट प्यार मिला तो वो हमारे लिए एक अलग ही खुशी थी कि ओके हमें इन फ्यूचर और भी अच्छा करना है ताकि हम सबको वो खुशी फील करवा सकें। और इस टाइम पे 15 अगस्त के मौके पे और इस टाइम तो पूरे कंट्री में एक फेस्टिवल सा है, हर जगह पे एक अलग खुशी है, तो मेडल के साथ आए हैं तो डेफिनेटली हम पूरे देश के साथ साथ आई थिंक मोदी सर को भी खुश कर रहे होंगे। पीएम से मिले भी हैं आप लोग, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या मुलाकात रही, क्या बात की आपने? हाँ जी, डेफिनेटली पूरी टीम को बहुत खुशी हुई पीएम सर से मिलने के बाद, क्योंकि जाने से पहले भी उन्होंने हम सबसे बात की थी और ड्यूरिंग टाइम भी उन्होंने हमसे बात की और मैसेजेस के थ्रू हमेशा हमें वो मोटिवेट करते हैं, मैसेज देते हैं कि ओके आप जस्ट खुल के अपने गेम खेलो और मेडल की चिंता मत करो। और आज मेडल के लिए उन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया, तो पूरी टीम को बहुत खुशी है और हम फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगे ताकि हम उनके साथ साथ पूरे देश को हमेशा एक अलग सी खुशी दें। सविता, एशियन गेम्स तो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो अभी इस साल के लिए कोई टूर्नामेंट्स हैं जिस पे फोकस रहेगा विमेंस हॉकी टीम का? हाँ जी, हमारा दिसंबर में एक टूर्नामेंट है, प्रो लीग क्वालिफाई राउंड है और हमारे लिए वो टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर हमारे पास सिर्फ एक एशियन गेम है और एशियन गेम के लिए प्रो लीग मैचेस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जैसे इस साल हमने प्रो लीग खेले तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमारे इस साल की जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हुई है, तो मेन फोकस हमारा दिसंबर में जो क्वालिफाई राउंड है प्रो लीग के लिए उस पर फोकस रहेगा। Joining us is silver medalist in long jump in the CWG, Sri Shankar. Sri Shankar, firstly, many congratulations to you on the silver medal. It was historic in many ways. Thank you so much, ma'am. It means really a big thing for me to win the silver medal for my country in the Commonwealth Games. Really happy about it. Of course, a bit disappointed that I couldn't win the gold because I missed it by the slightest of the margin. But nonetheless, it was great. It was a great feeling to win the silver medal for the country. After a long gap, we are winning a medal in long jump, in the men's long jump event. And very happy to be part of the Indian athletics team, which fared quite well this Commonwealth Games. And Sri Shankar, for you, circumstances have always been difficult. Sometimes it's a fight to get selected. Sometimes, there are issues that we cannot possibly discuss here. But how has it been for you, given the circumstances, to go there and win a silver medal? Honestly, no matter what the circumstances, and life of an athlete is always tough. The journey is always tough. It always has ups and downs. But it's very important that we always trust the process, maintain the consistency, and put in the work day in and day out, no matter what the outcome is. So I always believe that if we work towards our goal honestly and sincerely towards ourselves, we'll definitely reach that goal. So no matter what the circumstances, so that's what I always look up to, because if I have a problem around me, I don't care about that. I just work towards the target, because once we are sincere and honest with ourselves, the results follows. And if I talk about the Commonwealth Games, obviously historic performance, not just from you, but the entire athletic contingent. What was the motivation behind this, and who's been your inspiration? If you ask me to point out one name, I would always say that it's Mr. Neeraj Chopra, our own Neeraj Bhaiya, because his historic gold medal performance at the Olympic Games has given rise to a big revolution in Indian athletics. If you now see that it's not only the Commonwealth Games, but our juniors and the World Junior Championships have also done incredibly well this year.
So it's a kind of big change which just happened in Indian athletics. It's more like a big mental block has been removed with the historic gold medal last year at Tokyo. So we continue to keep up that momentum and build momentum towards the upcoming competitions like the Asian Games we have and the World Championship we have next year in Budapest, and obviously Paris Olympics in the 2 years. Yes, that was going to be my last question to you, that the ultimate aim, ultimate goal would be to stand on the podium in Paris 2024? Of course, yes, that's a main target or a big goal for all the Indian athletes, and for myself it's the same. The road would be tough, the journey would be difficult, it would be very hard to compete with the best, but I'm sure that with the small technical details and technical corrections which I can make in my long jump, I'll be able to be in that top core group and make the big jump for my country when it matters and win the medal there.